Welcome back to my channel. We will do exercise 1.3 question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Okay, now we will solve it. Room temperature is 40 degrees Celsius. Change in temperature per hour. कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। क्यों -5 लिया? क्योंकि रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर लोवर्ड, वो लोवर्ड मीन्स डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स माइनस आएगा साइन, डिक्रीज हो रहा है इसलिए। चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स। टेन आवर्स में कितना चेंज हुआ? इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई -5 डिग्री सेल्सियस। 10 5 50 -50 डिग्री सेल्सियस। 10 आवर्स में चेंज हुआ -50 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी विल फाइंड रूम टेम्परेचर. ओके, रूम टेम्परेचर, सो दैट room temperature after 10 hours. Hour is equal to 40 degree Celsius plus -50 degree Celsius is equal to कितना आएगा? -10 degree Celsius आएगा. This is your answer. Now we will see question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. Okay. Now first is question number 1. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? Okay, first of all we will write like this. Solution. पहले हम लिखेंगे टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 10 क्वेश्चंस. is equal to 10. Marks for correct answer. करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स. मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 इनकरेक्ट के लिए, और अनआंसर्ड क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 मार्क्स मिलेंगे. ओके, नाउ वी विल फाइंड द मोहन स्कोर. उसने कितने अटेम्प्ट किए? 4 करेक्ट किए और इनकरेक्ट आंसर 6 किए. करेक्ट 4, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके? 6. ओके, नाउ वी विल फाइंड द स्कोर. इज इक्वल टू 4 करेक्ट आंसर किए
For correct answer it will be 5 marks. For incorrect answer -2. Now we will find the score. 4 5 20 plus 6 2 12 -12. So 20 minus 12 is equal to 8. 8 marks मिलेंगे मोहन को. Okay. Now we will see question number 2, रेशमा's score. उसने करेक्ट आंसर कितने दिए? 5 करेक्ट आंसर्स. 5 है. इनकरेक्ट आंसर्स it is also 5. Now we will find the score. इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 करेक्ट आंसर के लिए है एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 है. 5 5 25 प्लस 5 2 10 -10. What will be the answer? 15 marks. Resma got 15 marks. Now we will find third question, Hina's score. करेक्ट आंसर कितने दिए उसने? 2 correct answers and 5 incorrect answers. Now we will find the score. Is equal to 2 आंसर करेक्ट दिए, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 और इनकरेक्ट 5 है मल्टीप्लाई -2. 5 2 10 प्लस 5 2 10. What will be the marks? Marks is 0. Hina got 0 marks. Now we will do question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of the white cement sold and loss of ₹5 per bag of the grey cement sold. Now question A is, the company sells 3,000 bags of the white cement and 5,000 bags of the grey cement in a month. What is its profit or loss? Now we will find profit is equal to ₹8. अगर लॉस है, लॉस के लिए कितने हैं? ₹5. Okay. Now we will find number of the white cement bags sold. कितने वाइट सीमेंट सोल्ड किए? 3,000 बैग्स. एंड नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग? कितने सोल्ड किए? 5,000. ग्रे सीमेंट के 5,000 सोल्ड किए और वाइट सीमेंट के 3,000 बैग सोल्ड किए. नाउ वी विल फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. पर बैग उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? ₹8. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3,000 मल्टीप्लाई ₹8 मीन्स 24,000 रुपीज़. ओके. नाउ लॉस कितने हैं? 5,000 प्लस ₹5 पर बैग लॉस है. 5 5 25 ₹25,000. लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट. दैट मीन्स कितना लॉस हुआ उसको? लॉस इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़ माइनस 24,000 रुपीज़. कितना लॉस हुआ? ₹1,000 का लॉस हुआ. दिस इज योर आंसर.
Now we will see the question number B. Question number B is, what is the number of the white cement bags it must sell to have a neither profit nor loss? If the number of the grey bags sold is 6400 bags, प्रॉफिट और लॉस उसको सेटल करना है. ओके, नाउ वी विल राइट लाइक दिस. नंबर ऑफ द ग्रे बैग सीमेंट सोल्ड, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज कितने बैग सोल्ड किए? 6400. टोटल लॉस 6400 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ का लॉस है. हाउ मैनी रुपीज़? 32,000 रुपीज़. 32,000 रुपीज़ टोटल लॉस है. हमें सेटल करने के लिए वाइट सीमेंट बैग कितनी सोल्ड करनी पड़ेगी? Now we will find the number of the white cement bags sold to earn a profit. Earn a profit of रुपीज़ 32,000. 32,000 प्रॉफिट अभी फाइंड करना है. तो कितनी हम बैग सोल्ड करेंगे? 32,000 डिवाइड बाई ₹8. प्रॉफिट के लिए 8 रुपीज़ है. 8 4 ज़ा 32 मीन्स 4,000 हम बैग सोल्ड करेंगे. देन प्रॉफिट और लॉस सेटल हो जाएगा. ओके, this is your answer. Now we will see question number 9. Fill in the blanks. First one is, replace the blank with an integer to make it a true statement. -3 multiply blank is equal to 27. 27 plus 27 लाना है. 9 3 ज़ा 27. ओके, हम करेंगे 3 9 ज़ा 27. तो 9 आया, लेकिन ये माइनस है तो वी विल राइट -9. नाउ सेकेंड वन इज 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू -35. कौन से टेबल में 35 आ रहा है? 5 7 ज़ा 35, लेकिन हमें यहाँ माइनस लाना है तो वी विल राइट लाइक दिस -7. Okay, now we will see third question. Blank multiply -8 is equal to 8 7 ज़ा 56. -56 है तो यहाँ भी लिखेंगे 7. Now question number 4 is means D. Question number D. Blank multiply -12 is equal to 132. 132 हमें लाना है. अगर टेबल्स नहीं आ रहा है, 132 डिवाइड बाई 12 करेंगे. 12 1 ज़ा 12. ओके, 1 और 12. 12 1 ज़ा 12. हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, लेकिन ये प्लस 132 है, माइनस की साइन नहीं है, तो वी विल राइट -11. ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe it. Thank you.